will be useful and positive. Before we commence with your questions, may I request the Chief of the Army Staff to deliver his opening remarks. And I would like to thank each and every one of you who have made it convenient to attend this event today in spite of the COVID restriction. And on this occasion, I would like to wish you all and all ranks of the Army, all officers, JCOs, Jawans, defense civilians, our Veer Naris, our family, take this opportunity to convey our most heartfelt condolences to our RRM who has suffered the most grievous personal tragedy, and we wish and pray for his speedy recovery. The last year was one full of challenges. We keep saying that we are prepared to meet all challenges, but last year we had to walk the talk and actually rise up to the occasion and show that we are indeed prepared to meet all these challenges. And I'm happy to say that we did so and came out on top and with flying colors. The challenges were multifarious, but main among them, of course, was the COVID and the situation on the northern borders. As far as the COVID pandemic is concerned, as early as the middle of February, based on whatever inputs we were getting, we had been able to make quite a pragmatic assessment of the situation and had instituted necessary post-protection measures. And as of now, keeping the threat perception in mind, we have gone in for our winter posture and our winter deployment. But as I said, we are alert and ever ready to meet any challenge. 8 rounds of talks between the corps commanders have taken place. We are now awaiting for the dates for the 9th round of talks, and I am sure that through dialogue and discussion, we will be able to reach an amicable solution based on the principle of mutual and equal security and in consonance with the talks and the understandings which resulted as outcome of the meetings between the respective defense ministers and the respective foreign ministers. So I am very hopeful for a positive situation. But as I said, we are ready to meet any eventuality. All the logistics aspects have been very well taken care of, whether it is clothing, ration, habitat. There is no cause for concern at all on that front. And as a result of all this, our operational preparedness was of a very high order, and the morale of the troops is high. Threats are there, external or internal. And I would like to, having supported us throughout the year which has just gone by, you've always been there to bank on, and we will continue to bank on you all to keep our citizens informed of whatever is going on through honest and truthful reporting. Thank you, and I am now open to questions. As far as our threats are concerned, we continue to carry out periodic reviews of the threat perception, taking a holistic view of both the international and the regional situation, the geostrategic perspective, and based on
this reassessment and overview that we carry out, reappraisal that we carry out, we keep modifying our own plans and strategies. So this is a continuous process. It does not end with any one such assessment, but whenever we get together and whenever some other developments take place, these developments could be in terms of additional deployments in the border areas, this could be in terms of changes and developments in infrastructure in the border areas, could be as a result of change in policies, whatever might be the input. Based on that, we carry out these reappraisals. But there is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plans. जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशन में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा, जैसे जैसे और मौके मिलेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वैसे वैसे ये जो भर्ती हो रही है वो बढ़ती जाएगी, और जो सुरक्षा स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होगी। कहना चाहूँगा कि जो मोबिलाइजेशन हुआ था चाइना के तरफ से, वो कोई नई चीज़ नहीं थी। वो हर साल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और हमें पूरी खबर थी कि वो किन किन इलाकों में मौजूद है। इसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अचानक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, अचानक कोई ऐसे कोई हरकत करेगा, इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा, जैसे हमारे पास रहा अगस्त के महीने में। हालांकि हम आई वॉल टू आई वॉल कॉन्टैक्ट में थे, तब भी चीन को नहीं पता चला कि हम ऐसे कोई उनको सरप्राइज करेंगे। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होता है, लेकिन जो स्थिति है आज लद्दाख में, वो वही स्थिति है जो हमेशा के लिए रही है, और हमें गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं, उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। और जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के ज़रिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे। उसी आधार पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी, और यही हम चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के ज़रिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। तीनों इस पर सहमत है कि एविएशन में भी विमेन ऑफिसर्स हो सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए। और हम सोच रहे हैं कि अगला जो कोर्स शुरू होगा, जो कि जुलाई के महीने में होगा, उसमें ज़रूर विमेन ऑफिसर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए दाखिल होंगे। और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद तकरीबन अगले साल के जून जुलाई में वो भी अपने फ्रंट लाइन ऑपरेशन यूनिट्स में फ्लाइंग ड्यूटीज़ में जुड़ पाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारा लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान है,
उसके अंतर्गत हम फोर्स मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए और बजटरी एलोकेशंस को देखते हुए ये प्रायोरिटीज़ चेंज होते रहते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए जो भी हमने गवर्नमेंट से मांगा है वो हमें ज़रूर मिला है। और पिछले साल हालांकि सभी मिनिस्ट्रीज़ को बताया गया था कि ये हर क्वार्टर में 25% की जगह सिर्फ 20% की एक्सपेंडिचर करना है, उस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर नहीं थी। और जो आरी स्टेज है उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि आरी स्टेज में, और हमें पूरा भरोसा है कि अभी आरी स्टेज का रिवाइज्ड एलोकेशन घोषित किया जाएगा, उसमें भी हमें खास करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और फंड्स मिलेंगे, जिससे कि जो भी और भी हमने काम करना है बाकी फाइनेंशियल ईयर में वो हम पूरा कर पाएंगे। जहाँ तक लैंड मॉनेटाइजेशन का सवाल है, इस पर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और अभी हमें लैंड के बदले इक्वल वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की इजाज़त मिली है। तो इस पॉलिसी के होते हुए, इस पॉलिसी के अंतर्गत हम ये मॉनेटाइजेशन की कार्रवाई को आगे ले जाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि ये कोविड वाला सिचुएशन है, तो जो लैंड प्राइसेस है उसमें भी गिरावट हुई है। तो इसलिए इस वक्त हम इस लैंड मॉनेटाइजेशन और उसके बदले जो EBI की कार्रवाई है उस पर हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, ताकि जब स्थिति सुधरेगी तब हम इसको और आगे ले जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर एक चीज़ है जो बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा होगा तीनों सर्विसेज के लिए, कि जो अनयूज्ड लैंड है, जैसे कि कैंपिंग ग्राउंड है पुराने ज़मानों के, या जो लैंड है जिसका अभी हमें उपयोग नहीं है, जैसे मिलिट्री फार्म क्लोज होने के बाद वो जो सरप्लस लैंड हुई है, इन किस्म के लैंड के बदले में इक्वल वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमारे बहुत सारे जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी दूर होंगे। तैयार थे और सारे मिलकर इंजीनियर्स, MGO सारे मिलकर हम ये पूरी जो बैकअप चाहिए होता है फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए, वो हम पूरा कर पाए और इसीलिए कोई ऐसे कोल्ड इंजरीज नहीं हुई। जहाँ तक ये फॉरेन विजिट्स का सवाल है, ये एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है और UAE, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया, इन 3 देशों की यात्रा से ये साफ उभर आया है कि ये तीनों देशों हमारे साथ और रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं हर फील्ड में, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, टूरिज्म और डिफेंस डिप्लोमेसी भी। और डिफेंस के क्षेत्र में ये ना सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेनिंग जो कोर्सेज के लिए हमारे जवान एक दूसरे के देश में जाते हैं, लेकिन जॉइंट एक्सरसाइजेज भी और डिफेंस कोऑपरेशन में वो भी चाहते हैं कि वो हमसे कोई डिफेंस इक्विपमेंट ले, और जो एम है डिफेंस एक्सपोर्ट्स का वो भी इसके थ्रू जो है हम आगे बढ़ा पाएंगे। बता चुका हूँ कि जो स्थिति पहले थी वो भी अभी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जहाँ तक दूसरे इलाकों की बात है, हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं।
सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन इलाकों में चाइना ने अपनी तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई हैं, नए बैरक बनाए हैं। और जैसे मैं पहले कह रहा था, ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। पूछा है स्ट्रेस के बारे में, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई, इसका जो सैंपल साइज था वो सिर्फ 400 था और ये मैं समझता हूँ कि एडिक्वेट सैंपल साइज नहीं है। अगर आपको 99% एक्यूरेसी चाहिए हो विथ 1% मार्जिन ऑफ एरर, तो इस किस्म के स्टडी के लिए तकरीबन 19,000 सैंपल लेने चाहिए। और अगर 95% एक्यूरेसी चाहिए, वो फिर नीचे आ जाएगा तकरीबन 7-8 हज़ार सैंपल्स हैं। तो ये 400 का सैंपल लेके इसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेस है या स्ट्रेस नहीं है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो बुरी बात नहीं होती, स्ट्रेस होने से जो है अच्छा काम भी होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो नीचे आए, बड़े नहीं हैं। तो आपकी खबर मुझे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये दिखाते हैं कि सुसाइड फिगर्स एक्चुअली कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर।